Okay, a good morning to all of you. So today we are going to complete our exercise portion of your chapter second of your civics, that is the role of government in health. First question is multiple choice questions, and your first multiple choice question is, on which of the following does our good health depend? ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज आवर गुड हेल्थ डिपेंड, इनमें से किन चीजों से हमारी गुड हेल्थ डिपेंड करती है? योर ऑप्शंस आर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, हाइजीनिक फूड एंड ऑल ऑफ दीज. So for our good health, do we need clean drinking water? Yes. Do we need pollution free environment? Yes. Do we need hygienic food? Yes. So your answer is all of these. For our good health depend on all of these: clean drinking water, pollution free environment and hygienic food. Next question is, which one of the following is a communicable disease? Communicable disease क्या होती है? Communicable disease ऐसी disease, ऐसी बीमारी जो एक person से दूसरे person तक पहुंचती है खाने के जरिए, पानी के जरिए, हवा के जरिए, उसको हम communicable disease बोलते हैं. ठीक है, तो अब कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं: हेडेक, कैंसर, सोर थ्रोट, डायरिया. इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है? हेडेक? नो, हेडेक इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज. कैंसर? एब्सोल्युटली नो. सोर थ्रोट? नो. डायरिया? यस, डायरिया जब आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, इट्स डायरिया इज द अनदर नेम फॉर दैट थिंग. ठीक है, when you have a loose and watery stool during a bowel movement, तो उसको डायरिया बोलते हैं, and it is a communicable disease. Next question is, which type of healthcare facility is costly? इनमें से कौन सी जो healthcare facility है? There are two types of healthcare facilities: public healthcare facilities and private healthcare facilities. इनमें से कौन सी healthcare facility costly है? Private, public, both and both are same. इनमें से कौन सी है? प्राइवेट. प्राइवेट और पब्लिक दोनों डिफरेंट है. दोनों में से कौन सी कॉस्टली है? प्राइवेट है. दोनों कॉस्टली नहीं है. बोथ आर सेम? नो, बोथ आर नॉट सेम. ओके, सो योर आंसर इज प्राइवेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज आरएमपी मीन? आरएमपी का मतलब क्या है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमपी, और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमपी? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रिकॉग्नाइज्ड. अब देखिए, recognized medical practitioners, retired medical practitioners, and all of these. So what does RMP mean? RMP means registered medical practitioners. Okay. Next question is, in which continent is Costa Rica situated? Costa Rica आपके कौन से continent में situated है? ठीक है. How many continents are there? There are 7 continents in the world. इनमें से कोस्टा रिका कौन से continent में है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया. तो अब बताइए, जो आपका कोस्टा रिका है कहाँ पे सिचुएटेड है? कोस्टा रिका इज सिचुएटेड Costa Rica is situated in North America. It is a country in North America. Okay. Your next question is, fill in the blanks. It is the responsibility of the dash to provide proper healthcare facilities to all. किसकी responsibility है? It is the responsibility of, okay, fill in the blanks. Now, it is the responsibility of the dash to provide proper healthcare facilities to all. So, किसकी responsibilities है कि proper healthcare facilities सबको provide हो? It is the responsibility of the government. Next question is, dash is one of the healthiest country in North America.
Dash is one of the healthiest country in North America. Which is one of the healthiest country in North America? Costa Rica. Costa Rica is one of the healthiest country in North America. Next, the resources needed to run public health services are obtained from dash. ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीजें जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को रन करने में, चलाने में ऑब्टेन होती है, ठीक है, चलाने में हेल्पफुल होती है, वो क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं वो सारे रिसोर्सेज? ऑल दीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैक्सेस. द टैक्सेस द सिटीजन्स पे. ओके, द टैक्सेस, जो ऐसे टैक्सेस जो सिटीजन्स पे करते हैं, ठीक है, उन्हीं टैक्सेस से सारी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है ऑब्टेन होती है. इन केरला dash percent of entire budget is given to panchayats. How many percent of budget is given to panchayat? केरला में 1996 में कितना परसेंट दे दिया था? 40% of entire budget is given to panchayats. Okay, now your next question is match the column. Column A 40%, 20%, 15,000, 18,218. And column B, new doctors in a year, people afford all medicines, hospitals in India borrow money for health reasons. Now 40%, what is 40% here? बोरो मनी फॉर हेल्थ रीजन. 40%, हम इंडिया के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो 40% आपकी जो पॉपुलेशन है उन्होंने वो हेल्थ रीजन के लिए क्या करती है, मनी बोरो करती है. 20% on its B, only 20% people afford all medicines. 15,000, अब कुछ बच्चों के बुक्स में या फिर हो सकता है एनसीईआरटी की जो अपडेटेड बुक हो उसमें 30,000 होगा, ठीक है, तो आप अभी 15,000 ही लिखिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो बुक है उसमें 15,000 ही गिवन है. दैट्स व्हाई आई took 15,000. Okay, 15,000 new doctors in a year. Every year 15,000 new doctors come up in a year. Okay, next is 18,218. 18,218, what is 18,218? 18,218 hospitals are there in India. Now your next question is very short answer type questions. Give the meaning of the term health. What is the meaning of the term health? Health means our ability to remain free of illness and injuries. Health का meaning होता है कि हमारी ability कि हम illness से, बीमारियों से और injuries से दूर रहें. That is the meaning of health. Next question, what kind of campaigns are organized by the government? कैसे और campaigns government organize करती है? Answer, governments organizes awareness campaigns with people participation. Government ऐसे campaigns organize करती है जिससे लोगों को aware मिले और लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा participate करें. For example, mosquitoes should not be allowed to breed in coolers, rooftops, etc. Mosquitoes जो है allowed नहीं होना चाहिए. कहाँ allowed नहीं होना चाहिए? To breed in coolers, rooftops. coolers में अब ये जो mosquitoes हैं, जो डेंगू के मच्छर होते हैं, वो क्या, वो पानी में ही पानी में ही क्या करते हैं, उनका वो ब्रीड करते हैं मॉस्किटोज. तो मॉस्किटोज को हमें कूलर्स में, रूफटॉप्स में पानी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए जहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ऐसे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि मॉस्किटो का आपका बताया मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म एथिक्स. डिफाइन एथिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक? एथिक मीन्स moral principles that influence a person's behavior. moral principles, ठीक है, आपके जो नैतिक व्यवहार है आपका, मॉरल इज नैतिक व्यवहार भी बोला जाता है, गुड बिहेवियर बोला जाता है. जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, चेंज करती है, उसमें अच्छी चीजें डेवलप करती है, दैट इज एथिक.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी? ठीक है, ओपीडी की फुल फॉर्म क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ये आपके हॉस्पिटल में कोई भी पर्सन अगर हॉस्पिटल जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, तो सबसे पहले कहाँ लेके जाया जाता है? उसे ओपीडी में लेके जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से वार्ड में डालना है, कौन से स्पेशलाइज्ड वार्ड में डालना है जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज? हेल्थ केयर सर्विसेज की दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? Healthcare facilities are divided into two categories, as you all know. What are these? These are public healthcare services, public health services, or private health services. Next question is, what was the main step taken by the Costa Rican government? Costa Rican government में क्या एक main step लिया था? Costa Rican government took a very important decision of not having an army and spent all the money on education, health and other basic needs of the people. Costa Rican government ने एक बहुत ही important decision लिया था, वो क्या था? Of not having an army, कि आर्मी नहीं हमें रखनी है, ठीक है, एंड स्पेंड, और आर्मी की जगह आर्मी में जितना भी पैसा हमारा जाता है उसका पैसा हम कहाँ पे स्पेंड करें? ऑन एजुकेशन, ऑन हेल्थ और भी जितनी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनमें हम क्या करें? अपना सारा पैसा स्पेंड करें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. Differentiate between private health services and public health services. So, the main difference between private health services and public health services are private health services. Private health facilities are not owned or controlled by the government. Private health facilities को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ओन नहीं करती. कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनी. ठीक है, मीनिंग सेम है. Public health services. The public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. पब्लिक हेल्थ सर्विस एक हेल्थ सेंटर्स का चेन है और हॉस्पिटल्स हैं जो कौन रन करता है? गवर्नमेंट रन करती है. नेक्स्ट, सर्विसेज आर एक्सपेंसिव. इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हम सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो लेबोरेटरी से हमारा ब्लड टेस्ट हो, ठीक है, या फिर एक्सरे करवाना हो या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना हो, हमें हर एक सर्विस का चार्ज देना पड़ता है और वो चार्ज जो होता है, सर्विस जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है. नाउ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एज कंपेयर टू प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर चीप होती है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं होती ज्यादा एज कंपेयर टू प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. नेक्स्ट, people do not face problems like wait in long queues in private hospitals. लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती. कौन सी प्रॉब्लम्स? जैसे कि लंबी लाइनों में खड़ा होना, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करती. और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन पब्लिक हॉस्पिटल्स. क्यों? बिकॉज सर्विसेज आर चीप देयर, इट इज नॉट कॉस्टली, दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग वहां पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं, बट उनको लॉन्ग क्यूज में पब्लिक हॉस्पिटल्स में खड़ा होना पड़ता है. नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट? ऐसी क्या चीजें हैं जिससे लोग जो है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं? Some of the things which prevent people from getting proper medical treatment are, क्या चीजें ऐसी? Lack of money, attitude towards women. बताया था चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन की जो एज कंपेयर टू मैन, वुमेन को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता कि अगर बीमार पड़ती है तो वो सोचते हैं कि हम वुमेन को ज्यादा हेल्दी होना जरूरी नहीं है, मेन को हेल्दी होना जरूरी है, और मोस्टली ये रूरल एरियाज में देखा जाता है. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ हेल्थ सेंटर्स. हेल्थ सेंटर्स बहुत ज्यादा, लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना. हेल्थ सेंटर्स नहीं है प्रॉपरली, बहुत कम है.
नेक्स्ट, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? Communicable diseases are diseases that are spread from one person to another in many ways, such as through water, food, air, etc. Communicable diseases क्या होते हैं? Communicable diseases ऐसी diseases होती है जो एक person से दूसरे person में spread होती है. किससे होती है? What through water, through food, through air, etc. Okay. Your next question is, describe the steps taken by the government of Kerala to create better health care facilities. ऐसे क्या स्टेप्स है जो केरला की गवर्नमेंट ने लिए थे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने के लिए? Some of the steps taken by the government of Kerala to create better health care facilities are क्या थे? In the year 1996, 40% of the entire state budget was given to panchayats. 1996 में 40% जितना भी बजट मिला था, जितना भी पैसा मिला था पूरे स्टेट में से, उसमें से जो 40% पैसा था, 40% जो बजट था, वो किसको दे दिया गया था? पंचायत्स को दे दिया गया था. Proper planning was done for नहीं आएगा पिक्चर. Proper planning was done for basic requirements like water, education, women development, etc. Proper planning की गई थी किसके लिए? Basic requirements कि पानी मिले सबको, education मिले, women का development हो सके, इन सब के लिए proper planning की गई थी. Next, water supply schemes were checked, working of schools and Anganwadis was ensured, and health centers were improved. वाटर सप्लाई स्कीम्स जो थी उनको चेक किया गया, वो जो स्कूल्स की वर्किंग थी, आंगनवाड़ीज की जो वर्किंग थी उसको इंश्योर किया गया, टाइम टाइम पे चेक किया गया कि वहां पे सही से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड हेल्थ सेंटर्स बहुत से हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया. नेक्स्ट, why pay taxes? Long question answers. Why pay taxes to the government? Why we should pay taxes to the government? Government को taxes क्यों pay करना है? We should pay taxes to the government because government uses tax money for providing many public services such as defense, police, judicial system, highways, etc. for the benefit of all the citizens. गवर्नमेंट जो टैक्स मनी यूज करती है, टैक्स क्यों पे करना चाहिए? सबसे पहले गवर्नमेंट टैक्स मनी का यूज करती है हमारी बेसिक पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, हाईवेज हो गए, इन सब के बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट टैक्स का पैसा यूज करती है. Taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training required for needy citizens. जो टैक्सेस हैं वो फंड करती है, मतलब पैसा देती है किसके लिए? डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलते हैं कंट्रीज में बहुत सारे, जैसे कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, जो बहुत महंगी पड़ जाती है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, उन सबको फंड करती है टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करती है? उन सब का टैक्स, उन सब के लिए टैक्सेस का यूज करती है. नेक्स्ट, टैक्स मनी इज यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. अगर कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वो टैक्स मनी का कब यूज होता है? उस टैक्स मनी का यूज होता है लोगों को रिलीफ देने के लिए. रिहैबिलिटेशन मतलब कि अगर रिलीफ और रिहैबिलिट वहां से बचाने के लिए, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है. अब देखिए अभी जयपुर में कितनी तेज बारिश हो रही थी, ठीक है, तो बहुत लोगों की हालत खराब हो गई थी, जो छोटे छोटे घरों में रहते थे, ठीक है, जो स्लम्स में रहते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो अब उनके घर धंस गए नीचे, तो गवर्नमेंट, उनके पास खाना नहीं था तो गवर्नमेंट उनको खाना प्रोवाइड करवा रही है, शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है. तो ये सारी सर्विसेज के लिए हमें ये रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के टाइम पे भी हम टैक्स मनी का यूज करते हैं. नेक्स्ट, स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स आर आल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यूज कलेक्टेड एज टैक्सेस. स्पेस हो गया, अभी जैसे चंद्रयान भी गया था, उससे पहले
मंगलयान भी गया था। तो इनमें जो पैसा लगता है, इनमें करोड़ों रुपए लगते हैं, तो वो करोड़ों रुपए ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन फंड करता है, कहाँ से फंड होता है, जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उसी से फंड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेज, एक्सप्लेन। अगर हम सैनिटेशन को और इम्प्रूव कर लें, वाटर को इम्प्रूव कर दें, तो बहुत सारे डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड्स टू ए राइज इन मेनी कम्युनिकेबल डिजीज। अब आप सबको पता है, अगर हम पुअर क्वालिटी का पानी देंगे तो उससे बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस होगी, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। सो in addition to that, the sources of such poor quality of water often act as a breeding ground for insects। और इससे क्या होता है, जब पुअर क्वालिटी वाटर हम प्रोवाइड करवाते हैं या फिर कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है प्रॉपरली, वहां पे क्लीनिंग नहीं होती है, तो इंसेक्ट्स भी ब्रीड करने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं, पैदा होना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द recent outbreak of dengue that happened in the city। नेग्लिजेंस, उसकी जो हमने जिसको नेग्लेक्ट किया ऑन द पार्ट ऑफ द सिविक अथॉरिटीज इन मेंटेनिंग द कैनल्स एंड लेक्स लीड्स टू अ सर्ज इन डेंगू एंड मलेरिया केसेस अक्रॉस द सिटी। अब देखिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डेंगू का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, जो सिटी में हुआ है, और उसमें नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट कि सिविक अथॉरिटीज ने क्या किया, कि कैनाल्स और लेक्स जो थे उनमें सफाइयां नहीं की अच्छे से, तो इससे वहां पे सर्ज आ गया। सर्ज मतलब क्या होता है, एकदम से बढ़ना, ठीक है। तो डेंगू के जो मच्छर है, मलेरिया के जो मच्छर है, डेंगू और मलेरिया पूरे सिटी में फैल गया। सो मॉस्किटोज नीड स्टैग्नेंट वाटर टू ग्रो, ठीक है। स्टैग्नेंट मतलब लगातार वहां पे अगर पानी इकट्ठा रहता है तो वो पानी चाहिए होता है मॉस्किटोज को ग्रो करने के लिए। Due to pollution and faulty waste management practices, these canals and lakes had turned into an ideal breeding ground for mosquitoes। और इस pollution के वजह से और फॉल्टी की सिटी के जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो उन्होंने उन्होंने सही से काम नहीं किया, इस वजह से दीज कैनल्स एंड लेक्स हैड टर्न्ड इनटू एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। उन्होंने कैनाल्स और लेक्स को क्लीन नहीं करवाया, इस वजह से वहां पे मॉस्किटोज क्या करने लगे, ब्रीड करने लगे। सो इट वाज ओनली आफ्टर ड्रेनिंग द कैनल्स एंड क्लीनिंग द लेक्स विद द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड सॉल्वेंट्स द आउटब्रेक वाज कंटेन्ड। और कब सही हुई ये हालत, जब कैनाल्स और लेक्स को क्लीन करवाया गया सीवेज ट्रीटमेंट की हेल्प से और सॉल्वेंट्स की हेल्प से, उसके बाद क्या हुआ, वो सारी चीजें सॉल्व हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। Okay, I will send it to you today or tomorrow after your video. Thank you for joining the class, everybody. Please take care of yourself.